నిన్న కరీంనగర్లో జరిగినటువంటి ఉదంతం దృష్ట్యా ఈరోజు అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లను పోలీస్ అధికారులను పిలిచి విస్తృతంగా చర్చించి వాళ్ళకు ఏ విధంగా పోవాలి అనే ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कड़े इकदाम किए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत की तमाम सरहदों को मोहरबंद कर दिया गया है और तमाम अफराद का जो रियासत में दाखिल होंगे पहले तिबी मुआयना किया जाएगा। इन सरहदों में 3 रियासतों कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सरहदें शामिल हैं। इस तरह तमाम गाड़ियों, बसों और दूसरी सवारियों के जरिए आने वाले लोग इसमें शामिल होंगे। चीफ मिनिस्टर ने रियासत भर में तमाम शादी खानों के लिए रात 9 बजे तक तमाम तकारीब मुकम्मल करने के काम जारी किए और कहा कि कोई भी दावत 200 अफराद से ज्यादा की ना हो। खिलाफ वर्जी करने वाले शादी खानों को भारी जुर्माने किए जाएंगे और उन्हें बंद भी कर दिया जाएगा। तमाम तालीम अदारों को पहले ही 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ताहम SSC और इंटरमीडिएट के इम्तिहान प्रोग्राम के मुताबिक जारी रहेंगे। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि बैरूनी ममालिक से आने वाले 5 मुसाफिरीन में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, जबकि 9 केसेस सड़क के जरिए आने वालों में पाए गए। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि शॉपिंग मॉल्स, ग्रोसरी स्टोर्स और दूसरे दुकानात खुले रहेंगे। इन पर कोई तजदीदात आयद नहीं किए गए हैं। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जखीरा अंदोजी करने और भारी कीमत पर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। నిన్న కరీంనగర్లో జరిగినటువంటి ఉదంతం దృష్ట్యా ఈరోజు అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లను పోలీస్ అధికారులను పిలిచి విస్తృతంగా చర్చించి వాళ్ళకు ఏ విధంగా పోవాలి అనే ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఎందుకోసం అంటే ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తుల సంఖ్య 14। ఈ 14 నంబర్స్లో 5 మాత్రమే మన ఎయిర్పోర్ట్లో దిగినటువంటి వాళ్ళు, విదేశాల నుంచి వచ్చి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయిన వాళ్ళలో 5 ఉన్నారు। మిగతా 9 మంది వివిధ రోడ్డు మార్గాలలో, రైలు మార్గాలలో రాష్ట్రంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు। ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే వేరే ఎయిర్పోర్ట్లలో పక్క రాష్ట్రాల్లో దిగి కూడా ఇతర మార్గాల్లో మనకు వస్తూ ఉన్నారు। అది కనిపెట్టడం కొంచెం మనకి ఇబ్బందికరంగా ఉంది। నిన్న రామగుండం వాళ్ళు అదే పద్ధతిలో వచ్చినారు। వాళ్ళు మత ప్రచారకులుగా ఏదో వచ్చినారు, ప్రీచర్స్ కింద। ఒక 48 అవర్స్ కరీంనగర్లో ఉండి తర్వాత మనకు రిపోర్ట్ వచ్చేస్తే మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు అబ్జర్వేషన్లో పెట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తా ఉన్నాం। అయితే ఇట్లా ఎంతమంది వచ్చిండ్రు, రాష్ట్రంలోకి ఎంతమంది చేరిండ్రు అని ఒక ప్రశ్న మనకు। ఆ ముందు జాగ్రత్త తీసుకోకపోతే మనం ఇబ్బంది పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది। దీంట్లో ఒకటి అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏముందంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్। ఇప్పుడు వియత్నాం దేశం చైనాకు పక్కనే ఉంటుంది, చాలా దగ్గర ఉంటుంది వియత్నాం, కానీ అక్కడ ఇబ్బందే లేదు। ఎందుకంటే వాళ్ళు డే 1 నుంచి చాలా టఫ్గా మెజర్ తీసుకున్నారు। ఏ దేశంలో అయితే చాలా టఫ్ మెజర్ తీసుకున్నారో అక్కడ సమస్య వస్తలేదు, ఏ దేశంలో అయితే తీసుకోలేదో అక్కడ ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంది। ఇటలీ అండ్ ఇరాన్ వర్స్ట్ ఎఫెక్టెడ్ కంట్రీస్। కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు కొన్ని రిలీజియస్ ఫంక్షన్స్ అవి పర్మిషన్ ఇచ్చారు, గుడ్డిగా నిర్లక్ష్యం చేసిండ్రు। ఈవెన్ చైనా కూడా ఇనీషియల్గా నిర్లక్ష్యం చేసిండ్రు, కాబట్టి చాలా పెద్ద ఇబ్బందులు వాళ్ళు పడ్డారు। మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా ఆ ఇబ్బంది రావద్దని మనం చాలా చర్యలు తీసుకున్నాం। అయినప్పటికీ నిన్న కరీంనగర్లో వచ్చినటువంటి ఇన్సిడెంట్కు చాలా కొత్తగా ఉంది, అది దాని మీద కూడా పూర్తిగా నియంత్రణ మనం పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది। అందువల్ల జిల్లా కలెక్టర్లకు, పోలీస్ అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చినాం। ఇమ్మీడియట్గా నెక్స్ట్ 2-3 డేస్లో వారి వారి జిల్లాలలో రాష్ట్రంలో ఏ మూలలో 1 మార్చి నుంచి వచ్చినటువంటి విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరినీ గుర్తించమని చెప్పినాం 100%। ఎవరన్నా వ్యక్తులు దొరికినట్టయితే
ఫస్ట్ మార్చ్ తర్వాత విదేశాల నుంచి ప్రయాణించి రాష్ట్రంలోకి చేరి వాళ్ళ గ్రామాలలో లేదా పట్టణాలలో నివసిస్తూ ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా నేను అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా, వాళ్ళంతలా వాళ్ళే వాలంటరీగా జిల్లా కలెక్టర్లకు కానీ ఎస్పీలకు కానీ రిపోర్ట్ చేయాలి వాళ్ళు అర్జెంటుగా. सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायदे मजलिस मखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने कल जेएचएमसी में मुनक़िदा आला सतह इजलास में कई मसाइल को उठाया और उनके फौरी हल पर जोर दिया। उन्होंने खासतौर पर SRDP के तहत जिन 8 प्रोजेक्ट्स का काम जारी है उनकी फौरी तकमील की जरूरत पर जोर दिया। सड़कों की तोसी के काम को जंगी खुदूद पर पाए तकमील को पहुंचाने की जरूरत भी जाहिर की गई। बिलखुसूस पुराने शहर में जहां हुसूल अराजियात एक मसला बना हुआ है, उसके लिए एक अलहदा और खुसूसी लैंड एक्विजिशन ऑफिसर का तकर्रुर किया जाए और अगर फिर भी रुकावट हो तो मकामी रुकन असम्बली और रुकन पार्लियामेंट से मशवरा किया जाए। सदर मजलिस ने असम्बली अलखजात, नामपल्ली और कारवान के 3 अहम कामों की तरफ निशानदेही की जिनकी शुरुआत की शदीद जरूरत है। इसमें टोली चौकीता अपोलो हॉस्पिटल, टोली चौकीता लोटस पाउंड और टोली चौकीता MD लाइन्स तक सड़क की तोसी का काम काबिल जिक्र है। उन्होंने लाला बाजार में सड़क की तोसी के लिए अराजियात के उसूल का काम तेजी के साथ मुकम्मल करने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि पुराने शहर में सड़कों की तोसी की निशानदेही की जा चुकी है लेकिन उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजी जहां भी हो वहां खवातीन के लिए टॉयलेट्स तामील किए जाएं और पार्क्स को सब्ज़-ओ-शादाब बनाया जाए। मलकपेट में फायर स्टेशन के बाजू सरकारी अराजी पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर करने की भी उन्होंने तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि पुराने शहर और नए शहर में जहां भी पार्क्स हैं वहां पर ओपन एयर जिम्स कायम किए जाएं। पैदल राहरों के हुकूक का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी तामीर और मरम्मत का काम फौरी शुरू किया जाए। जू पार्क के जंक्शन को फरोग देने के अलावा दोनों शहरों में नए बस स्टॉप्स तामीर किए जाएं। सारी दुनिया जहां बड़ी महामारी व इक़्तिसादी हालात की अफरा तफरी से दो चार है, वहीं आसमानी मामलात भी दुनिया में कई जगहों पर रहमत की निशानियां लुटाने में मसरूफ़ हैं। ये और बात है कि हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तहत इंसान हमेशा ही कोताह नज़र रहा है। आज तेलंगाना की राजधानी शहर हैदराबाद में शाम के औक़ात में अचानक आसमान पर काले घने बादलों ने घेर लिया। लगता तो ऐसा था कि ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिश होगी और सबको बहा ले जाएगी, लेकिन बड़ी रहमत वाली बारिश हुई। वो भी कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी निशानदेही के साथ साथ हुई है और सारा बीमारियों वाला माहौल अचानक धुल कर निखर गया। चलिए बल्दिया की लापरवाही बाज़ मरतबा माहौल को अपने तौर पर साफ करते हुए इंसानियत की मदद करने में मुक़द्दम नज़र आती रही है और शायद आती भी रहेगी, लेकिन हज़रत इंसान की सुधार नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर साबित हो रही है। जहीराबाद के रुकन असम्बली मानिक राव ने बताया कि कोरोना वायरस को रियासत में फैलने से रोकने के लिए कर्नाटक के सरहद इलाके चिरागपल्ली में चेकपोस्ट कायम किया गया है, जहां जहीराबाद में दाखिल होने वाले तमाम अफराद का तिबी मुआयना किया जा रहा है। చిరకపల్లి మెడికల్ బృందం వారు ఈ కరోనా విషయమై చెక్ చేస్తున్న చెక్ పోస్టుకు సందర్భంగా మేము ఇక్కడ ఎలా చెక్ చేస్తున్నారో చెక్ చేస్తున్నారనే సందర్భంగా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇది ప్రపంచం యావత్తు వణికిస్తున్నటువంటి కరోనా బారి నుండి ఎలా కాపాడుకోవాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం మేరకు మరి చెక్ పోస్టులు నిర్మించడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రజలను కాపాడే బాధ్యత మన ప్రజా ప్రతినిధులను కానీ మరి అధికారులను కానీ మరి అందరూ కూడా మన ఆరోగ్యం ఈ కరోనా రాకుండా చూసుకోవడం బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిది. కాబట్టి ఎవరు కూడా ఈ కరోనా బారిన పడకుండా వాళ్ళు మన జీవించే హక్కు ప్రతి మనిషికి ఉన్నది. కాబట్టి మనం ప్రజాప్రతినిధుల తరఫు నుంచి మరి ముఖ్యంగా మరి నాతో వచ్చిన బృందం వారు అందరూ కూడా మరి ఈ యొక్క కరోనాను రాకుండా ముఖ్యంగా బాంబే మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చే బస్సులను మరి వారిని చెక్ చేయాలని వాళ్ళకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే బయట దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు బాంబే నుంచి ఎక్కడ ల్యాండ్ అవుతారు కాబట్టి అక్కడ నుంచి వచ్చిన బస్సులను కానీ మరి కార్లను కానీ చెక్ చేయడం కానీ ఆ దేశం ఉంచడం అవుతుంది. ఇది ప్రపంచం యావత్తు మరి ఈ కరోనా భయానికి మరి చాలా మరి ఆందోళనకరంగా ఉన్నది. కాబట్టి మన రాష్ట్రంలో కూడా మరి గవర్నమెంట్ అన్ని విధాలుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఆరోగ్య మంత్రి ఈటెల రాజేంద్ర గారు ఈ యొక్క కరోనాను అరికట్టడానికి
అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా అందరూ కూడా సహకరించాలని అందరూ ప్రజలకి కోరుకుంటూ మరి ముఖ్యంగా సైరాబాద్ ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా ఇటువంటి కరోనా బాధ పడకుండా ఉండాలని మరి అందరూ కూడా తమరు ఎక్కడ పోయినా ఈ పెళ్ళిళ్ళకు పోయినా ఇక్కడ ఫంక్షన్కి పోయినా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రతి చోట ఎక్కడ పోయినా మీ చేతులు మరి సబ్బు పెట్టి కడుక్కొని మరి ఎటువంటి మరి ఇతరులను కూడా మరి తుమ్మినప్పుడు కానీ అది కానీ దూరం ఉండటం మరి అందరికీ చెప్పాలని ఈ యొక్క మెడికల్ చెకప్ గురించి ఇక్కడ సందర్శించడం జరిగింది కాబట్టి అందరూ కూడా క్షేమంగా ఉండాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశ మరి దానికి మరీ ముఖ్యంగా సైరాబాద్ వాళ్ళందరూ కూడా ముఖ్యంగా మరి ఆరోగ్యంగా ఎటువంటి కరోనా బాధ పడకుండా ఉండాలని ఈ మెడికల్ చెకప్ సందర్శించడం జరిగింది. मरकजी हुकूमत ने इतवार 22 मार्च से एक हफ्ते तक के लिए तमाम बैरूनी परवाजों को हिंदुस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत न देने का ऐलान किया है. इसी दौरान बराह जर्मनी इटली से आने वाला एक 72 साल शख्स पंजाब के जिले नौशहरा के एक दवाखाने में फौत हो गया. उसे सीने में तकलीफ की शिकायत पर दवाखाने में शरीक करवाया गया था, जहां उसमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया. यहाँ बताना जरूरी होगा कि कोरोना वायरस के पेश नजर दिल्ली में 31 मार्च तक तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है. शहर हैदराबाद के सरूनगर इलाके में वाक़ हज़रत ख्वाजा नियाज़ी अल-मारूफ अल्लाह के हुक्म से रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत सूफ़ी शाह ख्वाजा अलहाज मोहम्मद बशीर नियाज़ी शमसी क़ादरी व चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की अव्वलीन फ़ातिहा अरबईम का एहतमाम बड़े ही तक़द्दुस के साथ किया गया. फ़र्जंदान हज़रत ममदू अलहाज ग़ुलाम मोहम्मद अशफ़ाक़ व अलहाज मोहम्मद जहांगीर उर्फ़ गौस पाशा की निगरानी में शहर हैदराबाद के महेश्वरम की जामा मस्जिद में कुरान ख़वानी के बाद वहीं पर वाक़ बारगाह हज़रत सैयद समझ खेल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के खुर्ब में वाक़ बारगाह हज़रत ममदूह में संदल माली व चादर गुल पेश की गई और देर रात गए संतोष नगर इलाके में क़व्वाली की महफिल सजाई गई. उस महफिल में मिल्लत इस्लामिया के कसीर परवानों के साथ साथ हज़रत के कई मुरीदीन व मुतक़िदीन ने शिरकत करते हुए फैज़ हासिल किया. दुनिया की बड़ी महामारी बनाई जाने वाली कोविड-19 वायरस के चाइना के वुहान में सारी दुनिया के इजारादार माने जाने वाले अमेरिका की मिलिट्री की मुश्तरका फौजी मशकों के फौरी वापसी के बाद वहां से फैल जाने वाले इस वायरस की बीमारी निचली सतह पर जीडीपी के आ जाने वाले हमारे मुल्क भारत में भी आ जाने वाले माहौल में बीजेपी के पीएम मोदी ने मुल्क की सारी रियासतों की आवाम से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिबत करते हुए एहतियाती इक़दामात को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया, क्योंकि दुनिया के चालाक तरीन व मुतनाज़िया मुल्क इसराइल ने इसकी दवा के आविष्कार का दावा कर दिया है, जो कि सारी दुनिया में उसे खरीदे जाने तक काफ़ी अरसा बीत सकता है. इस मौके पर पीएम मोदी ने मुल्क पर यह भी वाज़ेह किया कि शायद वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड में भी इतने लोग नहीं मरे थे जितने कि आज इस बीमारी की वजह से ख़त्म हो रहे हैं. गुजरात के गोधरा व हालिया दिल्ली के फसादात में भी मरने वाले शायद इसका मुकाबला नहीं कर सके हैं. और आखिर में इन्होंने 22 मार्च को भारत की जनता के कर्फ्यू बंद का ऐलान भी किया है, जिसमें सिर्फ एक सारे दिन के लिए लोग अपने घरों में बंद रहेंगे और शायद इनके अपने ख्याल से ऐसा करने से भारत से कोविड-19 वायरस पूरा का पूरा जाने के इम्कानात रोशन हो सकते हैं. संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है. जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज कोरोना की इस बीमारी से हैं. पिछले 2 महीने से हम निरंतर दुनिया भर से आ रहे कोरोना वायरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं. इन 2 महीनों में भारत के 130 करोड़ नागरिकों ने
कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला किया है। सभी देशवासियों ने आवश्यक सावधानियां बरतने का भरसक प्रयास भी किया है, लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम संकट से बचे हुए हैं। ऐसा लगता है सब ठीक है। वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिंत हो जाने की ये सोच सही नहीं है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी का सजग रहना, सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। साथियों, आपसे मैंने जब भी जो भी मांगा है, मुझे कभी भी देशवासियों ने निराश नहीं किया है। ये आपके आशीर्वाद की ताकत है कि हम सब मिल करके अपने निर्धारित लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास सफल भी होते हैं। आज मैं आप सभी देशवासियों से, 130 करोड़ देशवासियों से, आप सबसे कुछ मांगने आया हूं। हमारे मुआशरे में कोविड-19 वायरस की वबा क्या फैली कि इंसानियत दुश्मनों की बनाई है। कहीं इसका मजाक उड़ाया जा रहा है तो कहीं सोशल मीडिया के जरिए इस सिलसिले में खतरनाक अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसका सिलसिला शायद बड़े मजबूत तरीके से पहले अमेरिका से शुरू हुआ था। खैर, तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली मंडल के महकमे पुलिस के इंस्पेक्टर गोपीनाथ ने आज एक इजलास में उनके इलाके में अफवाहें फैलाने वालों को सख्त इंतबाह दिया कि अगर ऐसे ही गलत अफवाहें फैलाने वाले लोग फौरन अपनी कार्रवाइयों को नहीं रोकेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। శంకర్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గ్రామస్తులందరికీ అదేవిధంగా ప్రజలందరికీ శంకర్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పోలీసు వారి తరఫున ఒక ముఖ్యమైన గమనిక. మూలంగా తెలియజేయండి ఏమనగా ఈ మధ్యకాలంలో కరోనా వైరస్ పైన అసత్య ప్రచారాలు మీడియా, ఈ సోషల్ మీడియా అండ్ ఇతర మీడియా నేపథ్యంలో అసత్య ప్రచారాలు చేయడం జరుగుతుంది. ఎలాంటి వదంతులు నమ్మవద్దు. అదేవిధంగా శంకర్పల్లిలో కానీ చుట్టుపక్కల కానీ ఎలాంటి కరోనా కేసులు కూడా నమోదు కావడం జరగలేదు. కనీసం అలాంటి సిమ్టమ్స్ కూడా మనకు ఎక్కడ కనిపించలేదు. ప్రజలు ఎలాంటి ఈ వదంతులను కూడా నమ్మొద్దని చెప్పేసి పోలీసు వారి నుంచి నేను కోరుచున్నాను. ఒకవేళ అలాంటిది ఏదైనా జనాలకి అనుమానం వచ్చినా కూడా ఏదైనా నేరుగా మా దృష్టికి తీసుకొస్తే మేము వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి అసత్య ప్రచారాలు చేసినా లేదా సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎలాంటి అసత్య ఆరోపణలు చేసి లేదంటే కరోనా వైరస్ మీద ఎలాంటి వదంతులు వ్యాప్తి చేసినా కూడా చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. शहर हैदराबाद के रचागुंडा कमिश्नरेट की जानिब से आज कोविड-19 वायरस के सिलसिले में एहतियाती इक़दामात रवां रखने के लिए एक अनोखा तरीक़ा लाया गया, जिसमें महकमा पुलिस के कुछ अहदेदारों ने बीच सड़क पर ट्रैफिक को रोककर एहतियाती इक़दामात की तफसील अमली तौर पर अवाम को दिखाई और समझाया कि साफ सुथराई से रहना ही बचाव की एक बेहतरीन तदबीर साबित हो सकती है। हमारे मुल्क भारत के करोड़ों दानिशमंदों की जानिब से मुल्क दुश्मन साबित किए जाने वाले बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा CA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतजाज के लिए बनाई जाने वाली जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक की जानिब से तेलंगाना असम्बली में इन बिल्स के खिलाफ में रेजोल्यूशन पास कर दिए जाने के बाद आज शाही मस्जिद बाग़ आमा में यौम दुआ मनाने का ऐलान किया गया था।
लेकिन बड़े ही चमत्कारी अंदाज में शहर का महकमे पुलिस ने इस सिलसिले के सारे लीडर्स को इज्तिमा ना होने देने के बहाने घरों पर नजरबंद कर दिया और वजह बनी वही बड़ी महामारी वाला कोविड-19 वायरस। समझ गए ना आप? वाज़ेह रहे कि 1 अप्रैल से रियासत में एनपीआर के शुरू किए जाने का ऐलान है और इस सिलसिले में सीएम केसीआर से अदालत में स्टे लेने का मुतालबा भी जोरों पर आ गया है, क्योंकि बिना दूल्हे के जहेज कोई माने नहीं रखता है ना। जीएचएमसी की कारकर्दगी हमेशा ऐसे ही बड़ी अजीब और गरीब साबित हुई है कि सैकड़ों हादसात के चलते आज एक और हादसा इसका गवाह बन गया। शहर हैदराबाद में आज अचानक बारिश हो जाने की वजह से उप्पल के पीरजादीगुड़ा बल्दिया हदूद में 40 फीट सड़क के पास कुछ तामीराती कामों को यूं ही छोड़ दिए जाने की वजह से वहां के एक बड़े गड्ढे में जमा हो जाने वाले पानी के ऊपर से वहां से अपने मासूम पोतरे के साथ गुजरने वाली एक मोहम्मद खातून उस गड्ढे में गिरकर मरते मरते बच गई, क्योंकि आसपास के लोगों ने बारिश की परवाह ना करते हुए फौरन उस बड़ी भी और बच्चे को ऊपर खींचकर बचा लिया। लेकिन तरक्की के नाम पर आखिर आवाम कब तक ऐसे मुसीबतें झेलती रहेगी, अभी इस पर सवालिया निशान बरकरार ही है। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्के के बहुत सारे इलाके, गोल्डन हिल्स कॉलोनी, मेट्रोपोलिस स्कूल का इलाका, कम्युनिटी हॉल, हकीम पेट वगैरह का दौरा करते हुए वहां पर अरसे दराज से आलूदा पानी की सप्लाई की शिकायत का जायजा लिया और फौरन उनके साथ इस दौरे में शामिल बरखी, बलदी व आबरसानी ओहदेदारों की मौजूदगी में डीजीएम से शिकायत करते हुए इस सिलसिले के काम शुरू करवा दिए। इस मौके पर उनके हमरा मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के साथ साथ कई हरकियाती कारकुन, अलीमुद्दीन, इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन में शामिल रहीम भाई, पाशु भाई, मजीद भाई, जब्बार भाई, मुजीब भाई वगैरह वगैरह साथ साथ थे। इसके बाद फौरन ये काफिला टोली चौकी में तामीर किए जाने वाले जीएचएमसी पार्क का मुआयना करने के लिए वहां पहुंचा, जहां वहां के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान ने इनका इस्तकबाल किया। पानी साफ आ रहा है? शायद अच्छा ही आ रहा होगा। अब अभी कैसा आ रहा? आ रहा, अच्छा आ रहा। जरा एक लोटे में भर के बताओ। डाल दो। अब क्या करें? बस अल्लाह शहर हैदराबाद में मिल्लत इस्लामिया की मुक़द्दस शब मेराज के करीब आ जाने वाले माहौल में कोविड-19 वायरस की दहशत के चलते शहर के एक मशहूर समाजी खिदमतगार हाफिज मुजफ्फर ने आज एक इजलास में बतलाया कि एहतियात इलाज से बेहतर होता है, लिहाजा इस मौके पर बहुत ज़्यादा लोग एक जगह जमा होने से बचें, सड़कों पर खुलेआम इज्तिमाई तौर पर न रुकें और मस्जिदों में या फिर घरों में इबादत का एहतमाम करें। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह अज़ीम। आजकल दूसरे ममालिक की तरह हमारे मुल्क में भी ये कोरोना वायरस का एक वबाल मचा हुआ है। ज़रूर गो के बाहर से आने वाले जो मुसाफिरीन थे उनको किसी किस्म का जो है पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है ये टेस्ट, मगर उसकी वजह से ऐसी दहशत फैली हुई है कि कोरोना वायरस एक जुर्सुमा है ये, और सब इससे उतना खौफजदा होने की ज़रूरत है नहीं। अब इसकी चक्कर में ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की जानिब से, जैसा कि अब शब मेराज का मौका है कि मसाजिद में भी लोग कसरत से पाए जाते हैं इबादत करने के लिए, मखसूस दुआओं के लिए और बयानात के लिए, और जितने भी ग्राउंड्स हैदराबाद में हैं उन ग्राउंड में से मुख्तलिफ ग्राउंड्स में भी जलसे मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जो है मुनक़िद किए जाते हैं। तो उन जलसों को कैंसिल करने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ऐसे मुसीबत के वक्त में, ऐसे परेशानी की हालत में और परेशानी के माहौल में तो जितना ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में रुजू हुए तो उतना बेहतर होता है। अब बजाय आप रुजू होने के, वहाँ पे रुजू होने से भी अगर रुकेंगे तो ये खुश आइंद बात नहीं है, बल्कि ये और मुसीबत को बढ़ा लेने वाली बात है। और दूसरी चीज़, अब जो शब मेराज के जलसे की बात है, मुख्तसर से अंदाज में अर्ज़ करना चाहता हूँ इख्तिसार से, कि ये हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से मोहब्बत के इजहार के लिए है, बिलखुसूस मेराज का जलसा। अब एक मामूली जुर्सुमे के डर से क्या हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत में फेल हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे जरासीम भी ऐसे जलसों की बरकत से ख़त्म हो जाएंगे
मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु तस्लीम की ज़ात से मोहब्बत ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमारा ऐन ईमान है। तो मेरी अवाम से गुजारिश करूँगा पूरे एहतियाती तदाबीर के साथ, पाक साफ रहते हुए और जो भी एहतियात करना है करते हुए बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ जलसों में ज़रूर शिरकत करें, जलसों को कैंसिल मत करें, और बल्कि जलसों में शरीक होकर कसरत से अल्लाह की बारगाह में रुजू हों और तौबा इस्तिग़फ़ार करें कि जब इंसान के गुनाह सरज़मीन कायनात पर बढ़ जाते हैं तो ऐसे अज़ाबात का नुज़ूल होता है। फिर भी ये बिल्कुल एक इशारा है, पर अभी समझ जाना चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, और ऐसे जरासीम के ख़ात्मे के लिए बल्कि पूरे मुल्क का जो है हर शहरी, हर इंसान जो है किसी भी कौम का, किसी भी मज़हब का हो, बनी आदम खुश रहना, बासायत रहना है, उसके लिए दुआएं करना है। जी हैदराबाद के उलमा मशाइखीन की काफियों की हजरात के जरिए से ही उन उलमा से आप सवाल करिए, क्या छोटे मसाजिद में अगर वो जुर्सुम आना है तो नहीं आता है, बड़े मसाजिद के पास ही आता है क्या? ऐसा नहीं है। जुर्सुमा अगर आना है तो वायरस कहीं भी आएगा और नहीं आना तो कहीं भी नहीं आएगा, और इसकी वजह से अल्लाह की इबादत में कमी करना बुरी बात है। जी, अरब मुबालिक हमारा इस्लामी दस्तूर नहीं है या कुरान हदीस नहीं है, वो उनका अपना हुकूमत का जो है उनका अपना तरीक़ेकार है, मगर हमारे इस्लामी तालीमात की रोशनी में किसी भी जरासीम या किसी भी जुर्सुमे से डरकर अल्लाह की इबादत में कमी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार में कम, ये मुमकिन नहीं है। बल्कि यहाँ तो और कसरत करना चाहिए कि ऐसे जरासीम ही नहीं, हर किस्म के अजाबात से बचने के लिए, अल्लाह के रहम को तलब करने के लिए, उसके रहम में और बढ़ावा हासिल करने के लिए हमारे ऊपर इसमें तो और कसरत से जमा होना है और कसरत से इबादत करना चाहिए। मगर जो दुनियावी एतबार से एहतियात है वो एहतियात है। आप देखिए ये जरासीम, ये बीमारी अगर आना है तो कहीं भी आएंगी, आप घर में तना बैठे भी तो आएंगी, आप मजमे में रह भी तो नहीं आएंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उन उलमा से मेरी गुजारिश है कि वो अपने ईमान का बेहतरीन तरीके से जायज़ा लें। क्या आपका ईमान इस कदर कमज़ोर नहीं हो चुका है कि एक मामूली जुर्सुमे के खातिर आप हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी मोहब्बत का इजहार करने से खासिर रहेंगे? नौज़ बिल्लाह, मैं तो उस किस्म की गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं तो कहूँगा कि ऐसे मुसीबत के वक़्त और आका के दामन को मजबूती से थामें और सब मिलकर हर कस व नाकस इबादत में कसरत करें, तौबा इस्तिग़फ़ार में कसरत करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारी तौबा इस्तिग़फ़ार और हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कसरत दुआओं की वजह से सारे मुल्क में अमन व अमान रहेगा, ये वबाल भी ख़त्म हो जाएगा और ये दहशत भी ख़त्म हो जाएगी। शहर हैदराबाद के मुमताज़ मशाइख माने जाने वाले मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सैयदुल क़ादरी ने आज एक इजलास में कोविड-19 वायरस की वबा से बचने के एहतियाती इक़दामात पर सैर हासिल तबसरा पेश किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस की वजह से आप जैसा कि देखते हैं कि सारी दुनिया परेशान है, हज़ारों की तादाद में अमवात हुए हैं और मुक़द्दस शहरों में, मक्के मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में भी एहतियाती तदाबीर लिए जा रहे हैं। इन सब में हमको आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और ये वक्त के हालात को भी सरकार दो जहां की अहादीस के मुताबिक हमको समझने की ज़रूरत है। मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा ऊँट बीमार है तो सेहतमंद ऊँटों के साथ उसको मत रखो। यानी मालूम हुआ कि ऐसा कोई इन्फेक्शन आ गया है तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए, दूसरे सेहतमंद लोगों के साथ आप मत मिलिए। और दूसरी हदीस शरीफ में है कि आका ने फरमाया कि अगर कहीं पर वबा आ गई है तो वहाँ के लोग दूसरे सेहतमंद जगहों पर मत जाएं, और जहाँ पर सेहतमंद लोग जहाँ पर मौजूद हैं वो वबा के मुतासर इलाक़ों में मत जाएं। यानी यहाँ पर भी आइसोलेशन का हुक्म दिया गया है। और मेरे आका ने फरमाया कि अगर कोई कोड़ी का बीमार तुमको नज़र आ जाए तो तुम ऐसे भागो जैसा कि तुम शेर को देखकर भागते हो, यानी उनसे दूरी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। तो ऐसे तमाम चीज़ों में हमको कोरोना वायरस जैसे ख़तरनाक वबा से बचने के लिए भी उसी तरह के एहतियात करने की ज़रूरत है। और ख़ुसूसन जो अभी बड़े बड़े इज्तिमात हैं वो बड़े इज्तिमात में भी हमको गुरेज करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने शब मेराज के मौके पर जो बड़े मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे मुनक़द होते हैं उन तमाम मुंतज़िमीन से ख्वाहिश की है कि आप इन इज्तिमात को मुलतवी करें और छोटे छोटे मस्जिदों में, अपने घरों में हम इबादत करते हुए इसको गुजारें और इस मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी नमाज़ों के ज़रिए इसको एहतमाम करें। और ये मैं ख़ुसूसी तौर पर मैं
हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ कि आप जो है सिर्फ़ एक मज़हब नहीं, हर मज़हब के लोगों पर आप जो है उनके बड़े बड़े जो इज्तिमात होते हैं उन पर आप एहतियात करने के लिए इंस्ट्रक्शन जारी करिए। और रामनवमी के भी अब जैसे बड़े बड़े उनके पास इज्तिमा होते हैं, गैदरिंग्स होते हैं, उसको भी उनको रोकना चाहिए। इसको हिंदू मुसलमान नहीं बनाते हुए एक इंसानी बुनियाद पर हम सबको मिलजुल कर मुकाबला करना है, क्योंकि अगर हिंदू बीमार पड़ेगा या मुसलमान बीमार पड़ेगा, कोरोना वायरस तो मज़हब की बुनियाद पर मज़हब देखकर उनको इन्फेक्शन नहीं देगा, जो मिलेगा उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। लिहाजा सबको एहतियात करना चाहिए। मैं इसी गुजारिशात के साथ आपके तमाम नाज़रीन से ख्वाहिश करता हूँ कि खुसूसन जो लोग बैरूनी मुल्क से आए हुए हैं उनको बड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो वबा आई है, वायरस आया है, ये हिंदुस्तान का नहीं है, ये हिंदुस्तान के बाहर से आया हुआ है, चाइना से शुरू हुआ है। तो जो बैरूनी मुल्क से आ रहे हैं कहीं, तो वो लोग 14 दिन तक अपने घरों में आइसोलेट रहें, अपने आप को दूसरों से दूर रखें, ताकि उनमें अगर कहीं कोई असर कहीं बाहर से आया है तो वो असर दूसरों तक ना पहुँचे। इस तरह का एहतियात करना बेइंतहा ज़रूरी है। और छोटे बच्चों को स्कूलों से मत भिजाइए, कॉलेजेस को मत भिजाइए, और आप भी गैर ज़रूरी तौर पर तफरीह मुकामात पर और दीगर जगहों पर जाने से इज्तनाब कीजिए। अब जगने की रात आ रही है, हमारे नौजवान भाई जो है रोडों पर, होटलों में नज़र आते हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ख्वाहिश करता हूँ कि वो होटलों पर भी निगरानी रखें कि ऐसे गैदरिंग्स को वो अवॉइड करें, ताकि लोगों में ये हम कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए उनकी शऊर बेदार कर सके। हम सबको एहतियात करना है, मिल के इसका मुकाबला करना है। सल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्क़ी सय्यिदना अला मुहम्मद व आलिहि सहबी अल्हम्दुलिल्लाह। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।